Assalamu alaikum, viewers. Today we will discuss the evidence, shahadat, gawahi, and various types of evidences that are concerned with the doctors or medical man. So, what is evidence? Yeah, gawahi. It is a statement of a person, or it is a document, or it is a material presented in a court of law in relation to a matter of fact lying before the court, proving or disproving this matter of fact under oath. यानी एविडेंस उस बयान का नाम है जो एक शख्स देता है, या उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं, या उस मटेरियल चीज को देते हैं जो अदालत में पेश किया जाता है अदालत की इजाजत से, और वो उस मैटर ऑफ फैक्ट को प्रूफ करते हैं या डिसप्रूव करते हैं जो अदालत के सामने है. सो एविडेंस कैन बी an oral statement, it can be a document, it can be a material. अब oral statement क्या है? This is oral evidence जो एक चशमदीद गवाह देता है. Oral evidence is a statement of a person who has seen or heard or perceived a matter of fact that is lying before the court under oath. यानी हलफ के बाद अदालत की इजाजत से जो बयान एक शख्स देता है जिस वाक़े के बारे में जो उसने खुद देखा या सुना या महसूस किया, उसको हम डायरेक्ट ओरल एविडेंस कहते हैं. अब डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट सिर्फ लिखी हुई चीजों को नहीं कहते. अब कानून में, कानून शहादत में, यानी लॉ ऑफ एविडेंस में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको, उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? ऑल द प्रिंटेड मटेरियल, ऑल द रिटन मटेरियल्स, sketches, drawings, pictures, photographs, and video clips. These are all included in the documentary evidence. Material evidence में जो चीजें अदालत में पेश की जाती हैं, मसलन खून आलूद कपड़े, बुलेट्स जो बॉडी से निकले या क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए, खाली गोलियों के खोल, कार्ट्रिजेस, या कोई हथियार जैसे छुरी, चाकू, ईंट या पत्थर जिससे कत्ल किया गया है, जिसे जख्मी किया गया है. इन चीजों का अदालत में पेश करना अदालत की इजाजत से, ये मटेरियल एविडेंस है. और जो चीज अदालत में एज मटेरियल एविडेंस पेश की जाती है उसको एग्जिबिट कहते हैं, जो एग्जीबिशन से निकला है, यानी नुमाइश, यानी अदालत के सामने एग्जामिनेशन के लिए पेश की गई है. तो ये है मटेरियल एविडेंस. अब आते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंस जो कंसर्निंग मेडिकल मैन. तो कानून में वो कौन कौन सी गवाहियां हैं या एविडेंसेस हैं, वो हैं, हम इनको क्लासिफाई करते हैं एज डायरेक्ट एविडेंस या ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस कैन बी डायरेक्ट, कैन बी इनडायरेक्ट. यानी ओरल एविडेंस जबानी जो आप गवाही देते हैं,
وہ دو قسم کی ہے، ڈائریکٹ اورل ایویڈنس اور انڈائریکٹ اورل ایویڈنس، اور اس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس، جن میں میڈیکل سرٹیفکیٹ، میڈیکل رپورٹ، میڈیکو لیگل رپورٹس، ڈائنگ ڈکلیریشن، ڈائنگ ڈیپوزیشن، chemical examiner's report, some books, textbooks or otherwise, magazines اور journals جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، یہ سب ڈاکومنٹری ایویڈنسز میں آتے ہیں۔ اور جو اورل ایویڈنس ہے، اس کو چشمدید گواہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اگر اس نے خود دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے یا سنا ہے تو یہ ایڈمیسیبل ہے، لیکن اگر یہ بات کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یا کسی سے سنا ہے یا لوگ کہہ رہے تھے اس طرح، تو اس کو ہیئر سے ایویڈنس کہتے ہیں، جو قانون میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایڈمیسیبل نہیں ہے ان اے کورٹ آف لا۔ سو ہیئر سے کہا سنا یا کہی سنی بات that is not acceptable in a court of law، اور یہ invalid evidence ہے، اس کو عدالت نہیں مانتی۔ Now start with the direct oral evidence. Direct oral evidence is a statement of a witness under oath with the permission of the court regarding fact of a matter lying before the court, which proves a matter or disprove a matter. This is seen or perceived by the person himself. Indirect oral evidence or circumstantial evidence is the one when circumstances prove a matter of fact indirectly. For example, جو شخص گواہی دے رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص چاقو ہوا میں لہراتا ہوا بھاگ رہا تھا، اس شخص کا نام یہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہتا کہ اس شخص نے چاقو سے فلانے پر حملہ کیا، صرف یہ کہتا ہے میں نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، لیکن میں فلانی جگہ سے گزر رہا تھا جب میں نے اس شخص کو دیکھا جو خون آلود چاقو ہوا میں لہرا رہا تھا اور بھاگ رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ دس از سرکمسٹانشل ایویڈنس۔ یا ہم کہیں کہ سسپیکٹ جس پہ شک تھا کو گرفتار کیا، اس کے گھر سے خون آلود کپڑے برآمد ہوئے اسی کے، اور وہ خون لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو وہ وکٹم کا تھا، مقتول کا تھا۔ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں۔ یا ایک ہتھیار موقع واردات سے ملی پولیس کو، اور یہ فورینسک سائنس لیبارٹری میں پروف ہوا کہ جو گولی چلی تھی جس سے قتل ہوا، وہ گولی اسی پستول یا اس ریوالور سے چلائی گئی تھی، تو یہ ریوالور کسی کے نام پہ درج ہے لائسنس۔ اب اس شخص کو پولیس نے بلا لیا اور کہا بھائی آپ کا پستول ادھر کیا کر رہا تھا؟ تو یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو فیکٹ کو انڈائریکٹلی پروف کرتے ہیں۔ ناؤ کمنگ ٹو ڈاکومنٹری ایویڈنسز۔ ہمارے میڈیکل لائن میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ ایک اصول آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی ڈاکٹر ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس یا رپورٹ عدالت میں بھیجتا ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے، سرٹیفائی کرنے کے لیے اس کو خود جانا پڑتا ہے عدالت میں اور اورل ایویڈنس دینا پڑتا ہے۔
So oral evidence, direct oral evidence is necessary for confirmation or certification of the documentary proof, the documentary evidence which you have sent to the court. जैसे एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको लीगल ऑटोप्सी की रिपोर्ट भेजी हुई है अदालत, तो वो अदालत उसको बुलाएगी, वो रिपोर्ट तब एडमिट करेगी अदालत, उसको एक्सेप्ट करेगी जब ये डॉक्टर जाएगा वहां अंडर ओथ, उसी रिपोर्ट को सर्टिफाई और कंफर्म करेगा कि हाँ जी ये मैंने लिखी है, ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी फलाने शख्स की मैंने की थी इस तारीख को, इस दिन को, इस वक्त, तो तब वो एडमिट हो जाए। जो वेरियस टाइप्स हैं मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के, उनमें सबसे सिंपलेस्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो हम डॉक्टर लोग मरीजों को देते हैं उनकी मर्ज के बारे में, और उनको एडवाइस देते हैं कि आप इतने दिन या इतने घंटे या इतने हफ्ते रेस्ट करें, या फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट एज से मुतलिक है, या ये मेडिकल सर्टिफिकेट डेथ से मुतलिक है, डेथ सर्टिफिकेट है। सो मुख्तलिफ किस्म के, या फिटनेस सर्टिफिकेट है फॉर अ जॉब। अगर ये अदालत में पहुंचता है तो अक्सर अदालत फिर डॉक्टर को बुलाती है फॉर ओरल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अक्सर मान लेती है अदालत, लेकिन अगर वो अहम मामला है तो अदालत आपको समन करती है, डॉक्टर को समन करती है कि आप आए इस दिन, इस तारीख को, इस वक्त, इस अदालत में, और आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है उसको सर्टिफाई करें, कंफर्म करें कि आपने दिया हुआ और सही है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताना जरूरी है डॉक्टरों को। ये है तो सिंपल सर्टिफिकेट, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ह्यूज है। इट कैरीज वेरी हाई इंपॉर्टेंस। इसके बारे में डॉक्टरों को एडवाइस है कि वो बहुत एहतियात करें, बहुत सोच समझ कर मेडिकल सर्टिफिकेट दें। हम डॉक्टर चूंकि यूजुअली हमारे एथिक्स में है, वी मस्ट बी वेरी काइंड एंड वेरी नाइस टू आवर पेशेंट, तो हम काइंडनेस में, पेशेंट के साथ हमदर्दी में ये भूल जाते हैं कि ये एक मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है, ये हमें जेल भेज सकता है। किन सूरतों में? अगर आपने फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया, यानी झूठ पर मबनी सर्टिफिकेट, या आप मुरवत में आके आपके किसी रिश्तेदार ने सिफारिश की है, किसी की फोन किया है आपको, यार फलाना टीचर है उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, आप उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दें और 3 दिन की छुट्टी दे दें, उसकी वाइफ बहुत बीमार है, ये है वो, तो आप बह जाते हो जज्बात में और मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हो, जो गलत है। आप हमेशा अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट और सिंसियर रहें। जो चीज आपके सामने है उसी को एक्सेप्ट करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें, और न्यूट्रलिटी से आप उसको उसका सर्टिफिकेट दें। अक्सर ऐसे हो जाता है, ये आपके एहतियात के लिए बात कर रहा हूं, हमारे साथ भी हो चुका है जब हम यंग इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे, कि लोग मसलन एक शख्स आपके पास आता है जिसके बारे में किसी ने आपसे सिफारिश कर दी, जनाब इसको दे दें सर्टिफिकेट 24 घंटे की रेस्ट की। उसमें 2 बातें आपको धोखा दे सकती हैं। नंबर 1, जो शख्स आपके पास आया है और कंप्लेंट करता है कि मेरी उल्टी दस्त है, मुझे 24 घंटे की रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट दे दें, या मुझे इधर एडमिट कर लें अपने इमरजेंसी रूम में, और वो अपना नाम आपको मिस्टर ए बताता है, और आप मिस्टर ए के नाम पे मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर लेते हैं। अब ये कैसे मालूम हो कि ये वाकई मिस्टर ए था या नहीं?
अगर वो मिस्टर ए नहीं था, वो मिस्टर जेड था, और मिस्टर ए जो है वो उस वक्त कहीं पर एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहा था या कर चुका था उस वक्त, और आपने यहाँ मिस्टर ए का मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, जो कल उसी जिसने जुर्म किया वो अदालत में उस सर्टिफिकेट को पेश करेगा कि जनाब मुझ पे तो ये दावेदारी की गई है, लेकिन मैं इमरजेंसी रूम में पड़ा था, 24 घंटे में तो उठ नहीं पा रहा था, डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया था या मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दी थी। इसलिए जरूरी है कि आप जब भी मेडिकल सर्टिफिकेट किसी को दें तो उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करें, उससे नेशनल कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड तलब करें और उसको बगौर पढ़ें और उसके पिक्चर को देख लें कि वाकई वो वही शख्स है। दूसरी बात, उसी सर्टिफिकेट पे नीचे सबसे लेफ्ट कोने में आप उस शख्स से, उस पेशेंट से दस्तखत कराएं और थंब इम्प्रेशन जरूर लें, क्योंकि अगर उसने गलत आइडेंटिटी की है और बहाना किया कि उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप उसका थंब इम्प्रेशन जरूर लें वाजे, ताकि अगर कल इस तरह की बात आ जाए तो वो थंब इम्प्रेशन से बंदा पहचान जा सके। दूसरा, इस मेडिकल सर्टिफिकेट में किसी को एक न्यूट्रल गवाह को रखें, एक या दो को रखें, जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ भी हो सकता है, उनसे भी दस्तखत लें, उनके नाम लिखें और राइट साइड पे नीचे अपना नाम, अपना दस्तखत, अपना मोहर, सील और अपना एड्रेस लिखें, डेट लिखें। इस तरह से आप एहतियात करेंगे। एक और बात जो मुशाहिदे में आती है, अक्सर डॉक्टर्स अपने मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिख लेते हैं कि नॉट वैलिड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इस पे अदालत या कानून का एतराज भी हो सकता है कि भाई आपने सर्टिफिकेट दिया ही क्यों है जब आप इसको इनवैलिड खुद ही करार दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको इनवैलिड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ लिखें, आप खुद अपनी तहकीक करें और सच्चाई को बयान कर दें, कोई मसला नहीं। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि नॉट वैलिड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरी बात यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा है, एक प्रोटोकॉल है कि कैसे लिखा जाए। बहुत से डॉक्टरों को ये पूरा प्रोटोकॉल मालूम भी नहीं होता, वो सिर्फ एक सिंपल कागज पे लिख लेते हैं कि आई एडवाइज सो मच रेस्ट टू द प्लान। ये गलत है, इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। ये आपके प्रिस्क्रिप्शन पैड पे होना चाहिए या ये उस हॉस्पिटल के पैड पे होना चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं। इसका हेडिंग आप ऊपर दें, टू होम इट मे बी कंसर्न। नीचे उस पेशेंट का नाम, डेट, टाइम और डे, उसका एज, उसका सेक्स, उसका पेरेंटेज और उसका एड्रेस। इसके नीचे आता है चीफ कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट क्या है, वाज़ेह तौर पे उसके कंप्लेंट लिखें, 1 2 3 जो भी उसके कंप्लेंट। अब आता है बॉडी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें आप अपनी एग्जामिनेशन बयान करते हैं, आपने कैसे उसको एग्जामिन किया, फिर कोई इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की और उसकी रिपोर्ट आई, तो फिर आपने क्या डायग्नोसिस की, तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस का मेंशन करना जरूरी है, एग्जैक्ट डिजीज को मेंशन करना जरूरी है, मैंडेटरी है। और इस बॉडी के नीचे जो सेंटेंस है वो आपका इन्फ्रेंस या ओपिनियन है, जिसके बेस पे आप कहते हैं कि मेरी नजर में, इन माय ओपिनियन, दिस पेशेंट नीड्स बेड रेस्ट और
complete bed rest for 7 days, for 2 weeks, for 3 weeks, जो भी आपकी नजर में उसको चाहिए वो आप लिख दें। नीचे जो है उसके आप उस पेशेंट का नाम लिखें, सिग्नेचर उससे लें और थंब इम्प्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड। ऑन द राइट साइड अपना दस्तखत, अपना सील या मोहर, अपनी डिजिग्नेशन बताएं और अपने हॉस्पिटल का एड्रेस लिखें। दिस इज कंप्लीट मेडिकल सर्टिफिकेट। हर चीज के लिए अलग प्रोटोकॉल है। जैसे डेथ का सर्टिफिकेट उसका अलग प्रोटोकॉल, जैसे रेस्ट का सर्टिफिकेट इसका अलग प्रोटोकॉल है, जो भी बताया आपको। एज का सर्टिफिकेट देने में अलग प्रोटोकॉल है। तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट वेरियस protocols or performance of medical certificates. नंबर 2 पे आते हैं मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट बहुत अहम चीज है। एक होता है मेडिकल रिपोर्ट, एक होता है मेडिको लीगल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट इज पर्सनल, ये सीक्रेसी में आता है, हमारे एथिक्स में पेशेंट की सीक्रेसी में आता है। वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज or reveal the medical report of our patients anywhere except in privileged communication, जहां कम्युनिटी की ग्रेटर इंटरेस्ट में हमें बताना पड़ता है, जैसे एपिडेमिक्स का खतरा हो, पेंडेमिक का खतरा हो, कम्युनिकेबल डिजीजेस का खतरा हो, तो हम उसको जाहिर करते हैं, नोटिफाई करते हैं, या फिर अदालत हमसे उसके सीक्रेट्स के बारे में पूछे और कंपेल करें कि आप बताएं, क्योंकि इस शख्स ने जुर्म शायद किया हुआ है बहुत बड़ा और पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि आप उसके बारे में बता दें कि आपने इसकी क्या ट्रीटमेंट की। तो तब हम बता सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। लेकिन अदरवाइज वी आर बाउंड बाय आवर मेडिकल एथिक्स not to reveal the secrets और मेडिकल रिपोर्ट सीक्रेट में। तो ऐसी सूरत में जहां प्रिविलेज कम्युनिकेशन आता है, आप अदालत में हो और आपने एक ऐसे शख्स का इलाज किया जिसको गोली लगी थी, जो आपके पास क्लिनिक में आया था और उसने कहा था कि गलती से गोली चली या ये हवाई गोली मुझे लगी है, मुझे किसी पर दावा नहीं है, आप मेरा इलाज कर, और आपने कर दिया। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। एनीवे, अगर आप कर चुके हैं तो अब अदालत ने आपको बुलाया है और आपको कहा कि इसके जख्मों के बारे में बताएं कि वो कैसे थे, किस चीज से इन्फ्लेक्ट हुए थे, उस जख्म का टाइप बताएं और उसका टाइम सिंस इंजरी, किस वक्त वो आपकी नजर में वो जख्म लगा था इसको। तो ये सारी बातें रिवील करने के लिए आपको अदालत मजबूर करती है और तब आप ये मेडिकल रिपोर्ट अदालत में रिवील करते हैं। अदरवाइज स्ट्रांगली मेडिकल रिपोर्ट आप कभी भी रिवील नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट, जैसे मेडिको लीगल ऑटोप्सी की रिपोर्ट, जिसको आम जबान में पोस्टमार्टम कहते हैं, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब या किसी इंजरी की रिपोर्ट या किसी सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट जो आपने अदालत में भेजी हुई है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें सीक्रेसी नहीं है। अगर आपने मेडिको लीगल ऑटोप्सी की रिपोर्ट लिखी है, खुद ऑटोप्सी की है, तो वो रिपोर्ट डिमांड पर आप वकीलों को दे सकते हैं। आप दोनों तरफ के जो जिस पे दावा हो रहा है उसको भी दे सकते हैं, उसके वकील को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जो सीक्रेसी में आता है। सो एवरी मेडिको लीगल रिपोर्ट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसकी सीक्रेसी नहीं है। और लेकिन अदालत में इसको सर्टिफाई करने के लिए आपको ओरल एविडेंस देना पड़ेगा। आप जाएंगे और ओरल एविडेंस से इसको कंफर्म कराएंगे, आप पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा जो कोर्ट का प्रोसीजर है।
آگے ہم آتے ہیں کہ اسی سلسلے میں ڈائنگ ڈکلیریشن اور ڈائنگ ڈیپوزیشن کی رپورٹس جو میڈیکل لیگل رپورٹس ہیں، اس کی تفصیل میں ایک دوسرے پروگرام، اس کے بعد آنے والے پروگرام میں بتاؤں گا کہ ڈائنگ ڈکلیریشن یعنی بیان نظر کیا ہوتا ہے، اس کے ٹرمز کنڈیشن کیا ہیں، اور کیسے یہ ایک ڈاکٹر ریکارڈ کرتا ہے ایمرجنسی روم میں یا کہیں بھی، اور کس کو بیچتا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے بارے میں ایک اس کے بعد آنے والے لیکچر میں بتاؤں. یہاں صرف یہ مینشن کرتا ہوں کہ یہ دونوں بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس میں آتے ہیں. پھر آتا ہے دی کیمیکل ایگزامینر رپورٹ. کیمیکل ایگزامینر کے جو رپورٹس ہیں وہ عدالت میں بھیجے جاتے ہیں ڈائریکٹلی، اور ان رپورٹ کو کنفرم یا سرٹیفائی کرنے کے لیے میڈیکل ایگزامینر کو نہیں بلایا جاتا. اس کی قانون میں اجازت ہے، ان کو نہیں بلاتے، اور اس کی وجہ ہے کہ ایک ہی دن میں کیمیکل ایگزامینر کئی عدالتوں میں کئی کیسز سے متعلق رپورٹس بھیجتا ہے. اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ہر عدالت میں جا کے اس کو کنفرم یا سرٹیفائی کرے. اس لیے عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ اوکے، اگر اس کی کنفرمیشن کے لیے اورل ایویڈنس کی ضرورت نہیں. پھر آتا ہے ویریس ٹریٹائز، بکس، میگزینز اور جرنلز، میڈیکل جرنلز. تو ان کے حوالے اکثر وکیل حضرات عدالت میں دیتے ہیں جب وہ میڈیکل وٹنس کو ایگزامن کرتے ہیں. خاص کر کراس ایگزامینیشن میں ڈاکٹر کو کنفیوز کرنے کے لیے یا پرووکیٹ کرنے کے لیے، یا اس میں کنٹراڈکشن پیدا کرنے کے لیے، جو اس نے رپورٹ لکھی ہے اس میں کنٹراڈکشن پیدا کرنے کے لیے، شک پیدا کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر سے ایسے سوالات کرتا ہے جس میں کوئی کسی کتاب سے کوئی کوٹ بتاتا ہے، کوئی رسالے سے، کوئی جرنل سے، اور کہتا ہے آپ نے تو ڈاکٹر صاحب اپنے رپورٹ میں یہ لکھا، لیکن یہ ٹیکسٹ بک آف میڈیسن فلانا نام ہے، یہ وہ تو یہ کہتا ہے جو میں پڑھ کر سناتا ہوں. تو یہ ایویڈنسز ہم کنسرن کرتے ہیں میڈیکل مین. یہ میں دوسرے ایک لیکچر میں بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو ریسپونڈ. ایک میڈیکل ڈاکٹر کو وکیلوں کا کیسے جواب دینا چاہیے، عدالت میں کیسے اپنی گواہی دینی چاہیے، وہ ایک اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ یہ جو بک ہے یا جرنل ہے یا کوئی میگزین ہے، اس کے لیے بھی اورل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بیان نظر ہے، ڈائنگ ڈکلیریشن اور ڈائنگ ڈیپوزیشن، اس کے لیے بھی اورل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے کنفرم کرنے کے لیے، اور ان بکس وغیرہ کے لیے بھی نہیں ہے. یا ایک ایسا بیان جو بہت ہائی سٹیٹس انفلوئنشل پرسن سے منسوب ہے، جیسے پریزیڈنٹ ہے یا دوسرے ملک کا صدر ہے، تو اس کے لیے بھی عدالت ایگزمپشن دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بڑا مصروف آدمی ہے، اس کو ہم ان کنفرمیشنز کے لیے نہیں بلا سکتے. یا کتاب کا جو آتھر ہے، میگزین کا جو ایڈیٹر ہے، اس کو ہم نہیں بلا سکتے، وہ بہت دور ہے، مصروف ہے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم ایز ایویڈنس مان لیتے ہیں. تو یہ ایسے ایویڈنسز ہیں جن کو کنفرم کرنے کے لیے اورل ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا. یہ بیان نظر سے متعلق ہے، بہت امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ ڈکلیریشن ہوتی ہے وہ، اور کیسے وہ ڈاکٹر کمپائل کرتا ہے، اس سارے کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سو اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو پسند آیا یہ تو آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کلواس. انشاءاللہ ملتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.